Good afternoon, everyone. My name is Ankit Tiwari, and I'm a research scholar at Himalaya University, Dehradun, under the guidance शांत of. हो जाइए प्लीज. सेशन हैज स्टार्टेड. प्लीज मेंटेन द साइलेंस. कृपया शांत हो जाइए प्लीज. वेरी नाइस. I'm doing my research work under the guidance of Professor Vice Chancellor J.P. Pachauri, sir. Uh, I would like to begin with the quote: "True education signifies empowering others and leaving the world a better one, the one we found." This is a quote by Mahatma Jyotiba Phule. So, as we see, there's one example here, Dr. Bindeshwar Pathak, sir, who has outlived this statement and has been empowering everyone's lives since last more than 5 decades. So my paper basically, the topic of my paper is beyond the basics menstrual hygiene and sanitation practices among the adolescents. So this was the paper which we have studied in rural areas of Dehradun, considering a Grameen school or a rural school, and we have selected the students of female students of class 8, 9, 10th, 11th, and 12th. Economists consider the demographic dividend to be factors in a country's development, but if the same is not tackled, it is nudged to become direction in which the biggest contention of country's development. Adolescents are the deciding and the upcoming demographic dividend of the country and our Bharat. Their education and health should be the utmost priority. A phenomenon common yet frowned upon is the menstruation needs, logic, and awareness. India's plumbing metrics in the HDI and the gender gap index shall be tackled by a balancing approach that shall weigh incentivization and awareness appropriately. So, this talking about the paper, we have studied from class. As I told you, we have studied from we have students from class 8 to class 12. The total number of students we surveyed was 208 people. Those who attained menstruation. So in this finding, basically, I'll cut short my research and the methodology. Basically, this was collected on, as I told you, primary database. Yes, sir. So basically, we can say that the family's social parameters are often governed by the religious clerics who often demand power by spearheading. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो धर्म और जाति का परिप्रेक्ष्य बीच में आता रहता है, तो जैसा कि पाठक सर ने इस चीज़ को तोड़ा है, और यहाँ पे उषा जी भी हैं जिनका हम पिछले 2 दिन से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं. इसके अलावा जो हमारा मेन मोटिव है अवेयरनेस के लिए बेसिकली, तो इसके लिए हमको जो क्लास छोटी कक्षाओं से बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग करनी चाहिए. और हमने मेरे जो स्टडी में फाइंडिंग्स ये है बेसिकली कि 8, 9th के बच्चे उतना इस चीज़ को मेंस्ट्रुएशन के बारे में नहीं जानते हैं. और इसमें मैंने 2 सवाल ये भी रखे थे कि क्या वो मेंस्ट्रुएशन से क्या समझते हैं. तो उनमें से 208 में से 99 लोगों का तो मानना ये था कि बॉडी की इम्प्योरिटी होती है जो निकल जाती है, बट उनमें से 18 लोगों का ये मानना था कि एक दोष है जो भगवान ने दिया है. तो ये सोच हमें आगे चल के बदलनी है बेसिकली. और ये वो 18 लोग भी जो ना सोचें कि ये कोई भगवान का दिया हुआ दोष है. और जैसे कि मैंने अब सुलभ म्यूजियम में ऑब्जर्व करा था, जो आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा, सिनेमा घरों में और टीवी में अक्षय कुमार का ऐड आता है जहाँ पे एक आदमी सिगरेट पी रहा है, एंड वो अक्षय कुमार उसके बाद आके बोलते हैं कि हीरोगिरी सिगरेट पीने में नहीं है, पैड खरीद के देने में है. तो उस चीज़ में वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पैड का कॉस्ट बेसिकली 15 to 20 रुपीज़ हो सकता है, पर सुलभ म्यूजियम में ये चीज़ बहुत ही एक लो प्राइस पर जी आई है. वहाँ पे मशीन्स हैं जिसमें हम जाके देख सकते हैं कि 2 रुपये में एक पैड मिल रहा है, जो कि बहुत सराहनीय काम है बेसिकली सुलभ के द्वारा, जहाँ पे मैनुअल मशीन और ऑटोमेटिक मशीन से पैड्स बनाए जा रहे हैं 2 रुपये में, जो कि एक बहुत अच्छा कॉस्ट है, जो जिससे कि ग्रामीण महिलाएं कपड़ा यूज़ ना करके पैड यूज़ कर सकती हैं, जो कि 2 रुपये एक अच्छा कॉस्ट रहेगा. और इसी से मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है जो हमारे समाज में काफ़ी जगह होता होगा, मेरे साथ ज़रूर हुआ. मेरे स्कूल में जब मैं 9वीं कक्षा में था तो हमारे अध्यापक थे, वो मेल टीचर थे हमारे. तो जब रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्लास हुई तो उन्होंने 1 हफ्ते तक क्लास नहीं आए वो, क्योंकि क्लास में दोनों महिलाएं थी और हम भी थे. तो उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस करना ठीक ही नहीं समझा, और अगले 10 दिन तक भी उन्होंने वो चीज़ नहीं समझी. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम भी उस टाइम पे आवाज़ नहीं उठा पाए, ना ही मेरी साथी महिलाओं ने वो आवाज़ उठाई उस टाइम पे.
तो जो लैक ऑफ अवेयरनेस हमें देख रहे हैं अभी से, और बहुत जगह पे हो सकता है, तो स्कूल लेवल से हम इस चीज़ को शुरू किया जाए तो काफ़ी प्रभावी होगा ये चीज़। और फाइनल कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सर्वे हमने किया है, ये हमने बहुत छोटे ग्रामीण लेवल पे किया है, जिसका हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, सिर्फ रूरल एरियाज़ में नहीं बल्कि रूरल और अर्बन एरियाज़ को भी हम कंपैरिजन में ला सकते हैं। जो लेवल ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस है प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में, या फिर रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।